नाइट के शहर के अंदर गया, जेल में गया। चलो चलो लिसन ना ऑल ऑफ यू क्या बोल रहा है? देख लो अरे वो वासन सर का है। सब पूरा कलेक्शन आना चाहिए तो पढ़ने तो लेके जाओ। फोकस नाउ, होमवर्क चेक कर लो। होमवर्क में करेक्शन था, वो पी वाला रीइश्यू प्राइस इज नॉट 6 रुपीज। चलो देखो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,75,000। आई थिंक पहले 4 एंट्रीज को आपने किए थे। दूसरा वाला था एप्लीकेशन 175 टू कैपिटल 125 टू अलॉटमेंट 50, है ना। फिर था अलॉटमेंट टू कैपिटल 1,25,000। हेलो। फिर था बैंक कॉल इन एरियर टू अलॉटमेंट 1,11,999 1,20,000। वो नोट बनाया था कॉल इन एरियर का, है ना। उसके बाद इक्विटी जब फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 1,25,000। फिर बैंक कॉल इन एरियर टू फर्स्ट कॉल 1,25,000 and 1,25,000. Is that right? Then first and final, second and final call to capital 1,25,000. Then bank call in to second and final call 1,25,000 and 125. You got it? उसके बाद था आपका 4 feature entry. So that is equity share capital debit 1 lakh to 4 feature 41,000 to call in earlier 59,000. बराबर से यार आज ना बोल, हाँ बुक्की नहीं निकल रहा है। बैंक शेयर 4 feature to equity share capital that is 90,000, 10,000 and 1 lakh मिला। हेलो, हाँ इजी अच्छे। Share 4 feature to capital reserve is 31,000. That was for all shares reissued. The first part you got 31,000. First part you got 31. Hello. Then first, second case B, उसमें reissue part था P का shares का, तो बैंक share 4 feature to equity share capital 54, 6 and 60. And then share 4 feature to capital reserve, that is 15,000. Is that correct? That was P के case में. How do you arrive at the transfer amount? It is P का profit minus P का loss, right? P का profit minus P का loss, that is 15,000. And then case C में I think Q के सारे shares reissue हो रहे हैं 7 रुपए में. तो bank share 4 feature to equity share capital 28, 12 and 40,000. And you get share 4 feature to capital reserve. Here you do Q का profit minus Q का loss, that is 8,000. Q का profit minus Q का loss, that is 8,000. Is that right? Yes, of course. All of you got it? Passing. Which? Bank call in earlier to equity share allotment. That is 41,900 and 66,900 and 75. Last मिला share 4 feature to capital reserve 8,000. No?
Case B now. Bank share forfeiture to capital 28, 12 and 40. And share forfeiture B ना मेरे bank share forfeiture to capital 54, 6 and 60. And then share forfeiture to capital reserve 9, 6, 50 का 50. P का 50. P का profit minus P का loss. आया ये जमा कुछ से P ने खाली एप्लीकेशन भरा था ना, एप्लीकेशन भर के भाग गया था, तो उसका 8400 शेयर्स था, है ना। 8400 शेयर्स पे बंदे ने 3 रुपया भरा, कितना भरा? 2.5. 84 into 2.5 21 minus loss 6, 15. बराबर से मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। All of you take sum number 25. ये एकदम ICI लेवल प्रॉब्लम है, एकदम चकाचक। सम नंबर 25 इंस्टीट्यूट लेवल प्रॉब्लम, ऐसा ही टाइप पकड़ के चलो, आएगा आपको। ओएसिस लिमिटेड, कम ऑन फोकस। ओएसिस लिमिटेड issued Oasis Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium. Okay, now shares are getting issued at premium. You know what is issue at premium? What is the meaning of premium? More than the face value, right? Shares are issued at a price higher than the face value, right? That is what is called as shares issued at premium. I want you all to take first question 19 ले लो। Question 19 ले लो पहले, उसके बाद उस पे जाते हैं। Question 19 देखो, आपका प्रीमियम पे शेयर्स कब इश्यू होता है? व्हेन इट्स अ गुड कंपनी। तो प्रीमियम का लॉजिक क्या मैंने बताया था आपको। देखो एक बिजनेस है जिसमें समझो 4 पार्टनर्स थे शुरुआत में, ओके, और उन 4 पार्टनर्स ने हर एक ने 1-1 लाख रुपया डाला था बिजनेस। each of the 4 partners invested 1 lakh in the business, and suppose that was a private limited company and the share ka face value was 10 rupees. So can I say each one of them had 10,000 shares of 10 each, right? 4 partners, each one of them was holding 10,000 shares of 10 each. Gradually they earned profits, they grew the business, okay, and on this business over a span of 5 years, let's say they made a profit of 5 lakh. Over a span of 5 years, they made a profit of 5 lakhs. So now their total equity with reserves, with profits, is around 6 lakh of rupees. Correct? Now, if anyone asks to buy a share from them, okay, suppose they want to go public or they want to sell their stake to someone else. So, will they sell this stake for 10 rupees? Obviously no. Because in all, their value of equity 6 lakh distributed between 4 people. So, it has now become around 1.5 lakh per person. Correct? Yes or no? तो 1.5 लाख हो गया है, तो इसका डिविजन क्या होगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो पर शेयर प्राइस इज अराउंड हाउ मच? 15 rupees पर शेयर. इज दैट राइट? बराबर. सो आई थिंक इधर 1 लाख रुपीज पर पर्सन. हाँ, तो 4 लाख का कैपिटल था. 4 और 6, 4 और 5, 10 लाख, 9 लाख हो गया. 1 लाख इट वॉज पर पार्टनर. वही सोचा ऐसे कैसे, तो 6 लाख कर देते हैं इसको, और ये 10 लाख हो गए. ओके, सो 2.5 लाख पर पार्टनर हो गया. पहले 1 लाख पर पार्टनर था, उससे अभी 2.5 लाख पर पार्टनर हो गया. तो आई थिंक दैट विल बी 25
5 rupees. Is that right? 25 rupees. तो 4 लाख के बिजनेस को इन्होंने 10 लाख पे पहुंचा दिया ओवर अ स्पैन ऑफ 5 years. तो 4 लाख का ओरिजिनल कैपिटल था, 1 लाख पर पार्टनर पे गोस 4 लाख, 4 लाख का हो गया 10 लाख, 10 लाख से इनका पर पर्सन हो गया डिविजन 2.5 लाख. सो 25 रुपए अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिनी जाती है, राइट. सो अभी अगर इनको आईपीओ लेके आना है तो क्या ये अपना शेयर 10 में ऑफर कर सकते हैं? पब्लिक को करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो लोग 10 रुपए में ऑफर करें तो दूसरे ही दिन कोई 25 के ऑफर देके खरीदने वाला है इनसे, क्योंकि आज की तारीख में इसको बोलते हैं बुक वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज द बुक वैल्यू, राइट. इनफैक्ट पार्टनर्स अगर यहाँ पे आईपीओ ला रहे हैं तो वो तो 25 रुपए में भी ऑफर नहीं करेंगे. वो कितने में ऑफर करेंगे पता है? कम से कम 250 से 300 रुपए में. ये भी मैं बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से बता रहा हूं, क्योंकि बिजनेस कैसे चलता है, इट इज बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कैपेसिटी. प्राइस टू अर्निंग मतलब जो डालने वाला बंदा है, पैसे डालने वाला बंदा, वो अपने पैसों पे 10% अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा कि हर साल उसको कितना छूटे, 10%. तो वो जो बंदा बिजनेस में पैसे डाल रहा है उसको पता है कि 25 रुपए का तो अप्रोक्सीमेटली ये लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. कितने अर्न कर रहे हैं? 25 रुपीज की तो आज की तारीख में वैल्यू हो ही चुकी है. तो आगे जाके ग्रो भी होगी ना, आगे जाके 25 की तो आज ऑलरेडी वैल्यू है, बुक वैल्यू कहते हैं इसको. इससे तो ऑलरेडी इतना तो है, इससे तो और बढ़ेगा. नेक्स्ट शायद 30 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 60 हो, और पैसे आ रहे तो और एक्सपैंड होने का चांस है. तो बोलने का मतलब इसको बोलते हैं 10x द वैल्यू बुक वैल्यू. 10x बुक वैल्यू मतलब क्या? बुक वैल्यू 25 रुपए है, उसका 10 गुना. दिस इज कॉल्ड 10x द बुक वैल्यू. तो काफी सारे इश्यूज 10x बुक वैल्यू, 20x बुक वैल्यू, 30x बुक वैल्यू, ये प्राइस पे भी इश्यू किए जाते हैं कि असम्पशन क्या है कि आगे जाके ये प्राइसेस बढ़ेंगे. क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी. और दूसरा होता है पीई रेशियो, जो मैं बता रहा था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो? अब फॉर एग्जांपल ये लोग 6 लाख रुपए ओवर स्पैन ऑफ 5 years कमाए, तो इट कम्स टू 1.2 लाख पर ईयर. कितना? 1.2 लाख पर ईयर आता है. तो 1.2 lakh is approximate profit they are earning per year on total number of shares, that is 40,000. तो can I say 3 rupees per year कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं? 3 rupees per year. और अगर ये 300 रुपए के प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एट अ पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ व्हाट? 300/3, दैट इज 100. 100 का पीई रेशियो माना जाता है. 100 का पीई रेशियो का मतलब आप अगर 300 रुपए अभी ये शेयर के दे रहे हो, कोई नया इन्वेस्टर 300 दे रहा है, तो उसको हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है? 3 रुपीज. उसको अपना कैपिटल रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? 100 साल. बट फिर भी इन्वेस्टर्स पैसा डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये आज 3 है, कल उठ के 4, 5, 6 रुपया भी हो जाए तो सीधा पी रेशियो कितना हो जाता है? 50. और थोड़ा और बढ़ जाए, मतलब 6 का 12 हो जाए तो पी हो जाएगा 25. आर यू अंडरस्टैंड? सो जब डीमार्ट आया था ना, तो डीमार्ट का अर्निंग पर शेयर वाज अराउंड 7 रुपीज. 7 रुपए का अर्निंग पर शेयर पे लॉन्च हुआ था आईपीओ 300 रुपए के प्राइस पे. तो तभी लग रहा था बहुत महंगा है, क्योंकि कितने का पी हो रहा था? अराउंड 25 टाइम का पी हो रहा था. अर्निंग पर शेयर बोलते हैं. अर्निंग पर शेयर वो 7 रुपीज ऑफ डीमार्ट. एवेन्यू सुपरमार्ट का जब आईपीओ आया था 6-7 साल पहले, तभी उसका अर्निंग था 7 रुपया और इश्यू प्राइस था कुछ 300 रुपया. 300 का इश्यू प्राइस था. तब तो लग रहा था कि बहुत महंगा है, लाइक आई थिंक 40 टाइम्स, नॉट इवन 25, 40 टाइम्स, 40-45 टाइम्स कि 40 साल लग जाएंगे पैसा रिकवर करने में. बट इट वॉज सच अ गुड बिजनेस डीमार्ट कि उसका आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन उसका प्राइस 300 से 600 हो गया. एंड विद इन 3 to 4 months द प्राइस वेंट फ्रॉम 600 टू अराउंड 1600-1700 रुपीज. तो पब्लिक पागल नहीं था इतना पैसा डालने के लिए. पब्लिक पागल कब होता है? इनिशियल स्टेज पे. इतना आईपीओ की लिस्टिंग डे पे अगर ये प्राइस पे लॉन्च हो जाए आईपीओ,
तो फिर पब्लिक पागल है पैसा डालने के लिए। मतलब अगर वो आईपीओ 1600 रुपए में लॉन्च करता ना और पब्लिक पैसा डाल रहा है, देन इट इज मैडनेस, क्योंकि उनको तो कुछ कमाने मिल नहीं रहा, वो सारा प्रमोटर लेके भाग गया। ये इश्यू बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि इश्यू प्राइस बहुत कम था, 300 रुपए का था, भले ही ये 40 टाइम्स लग रहा था, बट थोड़े ही टाइम पे प्राइस इतना हो गया और कंपनी इतनी अच्छी थी कि उसका ईपीएस ऑलमोस्ट हर साल डबल होने लगा। उसका ईपीएस हर साल क्या होने लगा? डबल, 7 का 14 का ऑलमोस्ट 30 रुपीज। सो राइट नाउ ऑल्सो इट इज रनिंग अराउंड अ पी, आप अगर चेक करोगे ना डीमार्ट का पी, इट इज ऑन अ पी ऑफ 100। अभी प्राइस चल रहा है कुछ आई थिंक 2800-900 का प्राइस चल रहा है, चेक कर लेना। तो अभी भी उसका पी चल रहा है 100 टाइम, मतलब द अर्निंग्स आर अराउंड 28 रुपीज। थोड़ा 50%, 100% ग्रो कर करके 28 to 30 रुपीज कमा रहा है और प्राइस चल रहा है अराउंड 3,500 तक भी गया था हायर प्राइसेस। तो बोलने का मतलब अगर अच्छा कंपनी है तो आईपीओ में आप 30-40 टाइम 50 टाइम भी पैसा डालोगे फिर भी नुकसान होने वाला नहीं, बट प्रोवाइडेड उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। डीमार्ट के केस में ऐसा हुआ था, उसका अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री आप चेक करोगे तो बहुत फास्ट एक्सपेंशन था और स्टोर्स जो थे उसके वो खुद के थे, सब खुद के पैसों से जगह खरीद के इनिशियल स्टेजेस में बहुत कंजर्वेटिवली बढ़ा, मतलब 5-6 साल तक 5 या 10 ही स्टोर्स ओपन किए, फिर नेक्स्ट 10 years में 50 स्टोर्स ओपन किए, उसके नेक्स्ट 5 years 10 years, मतलब अराउंड 20 years से वो काम कर रहा था। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और मार्जिन्स बहुत कम थे और बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो उसका पास 5-6 साल का ग्राफ दिया गया था प्रोस्पेक्टस में। तो हर साल द प्रॉफिट्स वर ग्रोइंग, हर साल द प्रॉफिट्स वर ग्रोइंग, हर साल द स्टोर्स वर ग्रोइंग, हर साल द रेवेन्यू वर ग्रोइंग। और उसको इंडिया का वॉलमार्ट के जैसे बोला जाता था कि वहां पे यूएस में कैसे वॉलमार्ट इज अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, अपना सुपरमार्केट, उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, उससे सस्ता माल पब्लिक सब मेजॉरिटी वॉलमार्ट से ही खरीदता है। सेम थिंग हैपेंड विद डीमार्ट। तो डीमार्ट का ये वैल्यूएशन वाज स्टिल नॉट वेरी एक्सपेंसिव। So how do you arrive at this valuation, expensive or not expensive? You compare it with the earnings. तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 3 रुपया था, तो प्राइस भले ही 300 है, बट देखना चाहिए अगर कंपनी अच्छा है तो आगे जाके आपको इसको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा आपके प्राइस। ओके, सो अगर अभी ये वाला था अपना, ये वाला फ्लॉप गया, कौन सा वाला? मामा अर्थ इज ऑलरेडी अ लॉस मेकिंग कंपनी, थोड़ा बहुत 1 साल में प्रॉफिट हुआ है। तो अभी जो इसका आईपीओ आया, प्राइस कौन सा प्राइस पे आया था? कुछ 1413 था, 10,000 करोड़ उसने रेज किया है, 1300-1400 आसपास का कुछ इश्यू प्राइस था। लेकिन उसका पी हो रहा था 2600 का, प्राइस टू अर्निंग हो रहा था 2600 का, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में लॉसेज हुए थे। तो रिकवर करने में 2600 का पी गिना जा रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब वो इश्यू लेके आया था तब भी कुछ 700-800-900 के पी में आ रहा था। तो 700-800-900 के पी में अगर प्रमोटर ला रहा है शेयर और आप पैसे डाल रहे हो मस्त में, तो वो अगर उसके अर्निंग्स बढ़ाए भी, डबल भी करे, ट्रिपल भी करे, तो भी 4-5 साल तक तो कोई आपको 100 के नीचे पी का तो दिखने का चांस है, ऐसा समझ। तो जब भी कोई आईपीओ आए तो आईपीओ में जो भी शेयर अपना ओनर्स होंगे, प्रमोटर्स होंगे, तो जो प्राइस वो लोग लॉन्च करेंगे आईपीओ का प्राइस, दैट इज नॉट एट द पार वैल्यू, बुक वैल्यू पे कभी प्राइस आने वाला नहीं है। द प्राइस विल बी ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू, एज कंपेयर टू द अर्निंग्स, बिकॉज इन फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस विल इंक्रीज, द अर्निंग्स विल इंक्रीज, बिजनेस विल ग्रो, तो दे आर गोइंग टू फेच अ हायर प्राइस। तो जब भी आईपीओ लॉन्च होता है, the price that is decided by the promoters, 9 out of 10 cases, it is going to be this price rather than this price. होना चाहिए ये, थोड़ा बहुत शेयर होल्डर को भी कमाने मिले, प्रमोटर थोड़ा कम कमा के निकले, क्योंकि उनका भी एक मॉरल अथॉरिटी, मॉरल अपना लायबिलिटी होता है एक शेयर होल्डर के टाइम, शेयर होल्डर के लिए, कि शेयर होल्डर भी जो नया बकरा लोग आ रहे हैं, रिटेलर इन्वेस्टर तुम्हारे कंपनी में भरोसा डाल के इन्वेस्ट कर रहा है, तो यू हैव सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, भाई उनको भी थोड़ा कमाने का मौका दो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओज में क्या होता है, प्रमोटर्स लूट ऑफ बाय द शेयर होल्डर्स,
वो कभी प्राइस कम देते ही नहीं है। कितना प्राइस पे लॉन्च करते, ये प्राइस पे लॉन्च करते। तो आपका जितना प्रीमियम है पहले ही ऑब्जर्व हो जाता है मार्केट में से, फिर आप अपना शेयर होल्ड करो और वेट करो 5 साल 10 साल, उसके बाद आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस नाउ। ओके, तो 100 बात की एक बात, प्रमोटर ने कमाया है, अच्छे से वैल्यू बढ़ाई है। आज की तारीख में हमारे केस में सपोज उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 25, विल दे लॉन्च द आईपीओ और पब्लिक ऑफरिंग एट 25 रुपीज? 10 रुपीज में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो देखेगा कि अगर मैं 10 में करूं तो कोई दूसरा तो 25 ताबड़तोड़ देने वाला है। 25 क्या 50 में भी खरीदने आ जाएगा, 50 क्या 100 में भी खरीदने आ जाएगा। तो मैं ही क्यों सारा का सारा प्रॉफिट पहले ना हड़प लूं? तो कंपनी क्या करता है, पहले आईपीओ के वक्त ही प्रॉफिट हड़प लेता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इश्यू एट प्रीमियम। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इश्यू एट प्रीमियम। और वो प्रीमियम खाली 10 का शेयर 25 में देके नहीं करेगा, 10 का शेयर 300, और ज्यादातर कंपनी तो 10 का शेयर 300 नहीं, 500 600 700 में। जितना फ्यूचर प्रीमियम वो भी हड़प लो, आज के आज ही नंगा कर दो, पूरा ही पैसा आज ही ले लो। तो शेयर होल्डर को ज्यादा कमाने का मौका मिलता नहीं है इन केस ऑफ आईपीओ। बहुत कम आईपीओ ऐसे होते हैं जो रीजनेबली प्राइस होता है। हाउ टू डिसाइड वेदर आईपीओ इज गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर यू? यू कंपेयर मेनली दीज टू थिंग्स। एक तो बुक वैल्यू चेक करो, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इश्यू प्राइस क्या आ रहा है, और दूसरा चेक करो अर्निंग्स के कंपैरिजन में इश्यू प्राइस क्या आ रहा है। उसका अर्निंग पर शेयर कितना है और उसका इश्यू प्राइस कितना गुना आपका अर्निंग पर शेयर आ रहा है। समझ में आया? कुछ अच्छे बिजनेसेस, अच्छे कंपनी होते भी हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं बोल नहीं रहा हूं कि इन्वेस्ट करना, देयर इज रिसेंटली एक आईपीओ आने वाला है इसका, अपना NSDL नहीं, CDSL का एक सब्सिडरी है, नाम हट गया मेरा, उसका जो आईटी मैनेज करता है पूरा, सेंट्रल डिपॉजिटरी का आईटी पार्ट का एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है। उसका नाम है, मैंने देखा था, आई एम नॉट अप्लाइंग, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज अ गुड कंपनी। इसका नाम है प्रोटियन, प्रोटीन नहीं, प्रोटियन। प्रोटियन इज अ सब्सिडरी ऑफ CDSL। CDSL कौन है? आप जो भी शेयर्स खरीदते हो ना, उसका तिजोरी। CDSL एंड NSDL, दीज टू आर द तिजोरी, जो आपका सारा शेयर्स वगैरह सेव करके रखते हैं अपने लॉकर में। तो पूरे इंडिया में यही दो कंपनी, मोनोपोली बिजनेस है, 50-50 जैसा। उसमें भी वो जो प्रोटियन है, वो जो CDSL का आईटी पार्ट है वो हैंडल करता है। तो आईटी पार्ट हैंडल करने में वो उसका 100% मोनोपोली है, कोई और बिजनेस ही नहीं उसका इंडिया। तो दैट्स अ वेरी गुड कंपनी। उसका आईपीओ आने वाला है अभी, उसका भी लेकिन हाईली प्राइस्ड आईपीओ, 700-800 के रेंज का आईपीओ, 750-800 का भाव पे। तो प्राइस आपको चेक करके फिर डालना जरूरी है। अच्छी कंपनी है तो आपको प्राइस जस्टिफाई करके दे